Okay guys, so we are starting through NTC, and as we know, we start from beginning. No, and our beginning is the end, right? So we start from RSA. Now, public key cryptography. What is public key cryptography? Is like in which you have a public key, right, and a private key, right? So this means like you have two keys, and when you have two keys, we say it's asymmetric cryptography algorithm, because when you have symmetric key cryptography, it's like just one key in center as well as at the receiver. But when you have two keys like public key, a private key, this is asymmetric. So again, if you want guys, so I can let you see the main definition for what a public key cryptography. But what I mean is like you have a public key which is available for everyone, and that helps in encryption and decryption. Public key cryptography. Let's see this, what is happening right here. But I know that public key cryptography is something which you have public key and private key, and it helps. Or asymmetric key cryptography is a field of cryptography system when we use a pair of related keys. Each pair consists of public key and a corresponding private key. Key pairs are generated by cryptographic algorithm based on the math problem termed one-way functions. ठीक है? Okay, so it's one-way function की एक डायरेक्शन में जाना आसान है, but it's like दूसरे डायरेक्शन में वापस आना, it's not that easy. So types of asymmetric encryption algorithm is RSA, DSA, or digital signature, right? Elliptical, Diffie-Hellman key exchange, DSL. Okay, so this is what it is. Public key cryptography involves a pair of keys known as public key and private key, which are associated with the entity that needs to authenticate the identity electronically और sign encrypt होता है. तो ये digital signature की बात आती है. But सीधी बात है, अगर कोई आपसे पूछे what is public key cryptography, it's a asymmetric key cryptography in which we have two related pair of keys, which is public key and private key, right? So it's a field of cryptography where we use a pair of related keys. ठीक है? The public key cryptography is asymmetric key cryptography where we use a pair of related keys. One is public key and other is private key, and these key pair are generated by using cryptographic algorithm based on mathematical problems and termed as one-way functions. ठीक है? Again, if someone asks you what is public key cryptography, it's a asymmetric key cryptography where we have a pair of related keys. These are like public key and private key. These are generated by mathematical these are generated by a cryptographic algorithm based on mathematical problems. ठीक है? These we can stuff like it's like pair of related keys, pair के अंदर public private, and it's generated by using cryptographic algorithm based on mathematical problems. That's what it is. Now coming back to RSA, we know RSA की full form कोई जैसे पूछता नहीं है, but देख लो यहाँ पे लिखी हुई है Rivest Shamir Eldman. Okay, it's fine. RSA में बात आती है, how we do. So RSA में like RSA is a public key cryptography system. That means it's an asymmetric cryptography system. We have two keys, public key and a private key, and we first of all generate these public key, private key, then we do encryption process, then we do decryption process at the receiver end. So अब देखो क्या होता है, sender को आपके ना उसकी while doing key generation, हम key generate करते हैं public key for receiver और public key of जनरली जो ये की जनरेशन होती है, इट्स डन बाय रिसीवर. ठीक है? इन केस ऑफ ऑल दीज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, बिकॉज रिसीवर के पास आ रहा है साइफर टेक्स्ट. अब उसके पास अपनी प्राइवेट की पब्लिक की जनरेट करने का तो तरीका है ही, उसके पास प्राइवेट की जनरेट करने का भी तरीका है अपनी, है ना? तो ये क्या करेगा, अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करेगा. सो हाउ ही डज दैट? तो इन केस ऑफ RSA एक पी वी टेक टू लार्ज प्राइम नंबर्स. ठीक है? P and Q. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ऑब्वियसली आई एम नॉट रॉन्ग, बट एक बार हम अपनी नोट्स के साथ मैच करते हुए चलते हैं. की जनरेशन में टेक टू बिग प्राइम नंबर्स विच इज P and Q. देन हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एक्सपोनेंट लेते हैं E सच दैट द GCD ऑफ n, E इज 1. ठीक है? नाउ जो अब मेरी पब्लिक की बनती है वो होती है n विच इज इक्वल टू P into Q, और जो E होता है तुम्हारा वो होता है 1 से लेके 5n की रेंज में, यानी कि P-1 और Q-1, और जो तुम्हारा P into Q, और जो तुम्हारा E होता है दैट इज योर दैट इज अगेन योर पब्लिक की में एक और एलिमेंट होता है. अब बात करते हैं प्राइवेट की. क्या होती है प्राइवेट की? होता है पब्लिक की का जस्ट इनवर्स. ठीक है? तो इनवर्स काइंड ऑफ कह लो, या फिर एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, phi n इज इक्वल टू P-1 into Q-1. ठीक है? तो phi n तो हमें पता चल गया, P-1 into Q-1. अब एक होता है D इज इक्वल टू phi n into K plus 1 by E. ठीक है? अब phi n into K है प्लस 1 करेंगे डिवाइड बाई E करेंगे तो ये D आ जाएगा. अब D क्या है हमारी? D है हमारी प्राइवेट की, और ये है हमारा K इज एनी इंटीजर. ठीक है? सो
पब्लिक की क्या बनी हमारी n, प्राइवेट की क्या बनाई हमारी जस्ट d, ठीक है। सो अब ये प्राइवेट की किसकी है, रिसीवर की है, क्योंकि रिसीवर ने देखा भाई फाई एन मेरे को मिल रहा है वो 2 प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइवेट की तो उसको पब्लिक की तो अपनी मिल रही है, अपनी प्राइवेट की भी देख लिया। अब इंक्रिप्शन जब होता है तो वो होता है रिसीवर की पब्लिक की के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे मैसेज के पावर में ई चढ़ेगा, वो पब्लिक की में अवेलेबल है तो वो सबको पता है, ठीक है। मैसेज के पावर में ई चढ़ा मॉड एन, तो ये इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट ये मिल गया और ये सबको मतलब पता है कि साइफर टेक्स्ट, ठीक है। पर सबको क्या पता है कि ये एल्गोरिथम यूज़ हुई है, और सबको ये भी पता है कि उसकी पब्लिक की क्या है। अब देखो ये जो पब्लिक की होती है ना फॉर ये होती है 2 पेयर्स की, ठीक है, कि मतलब ये इन दोनों पेयर्स की पब्लिक की है, और इन दोनों बंदे को एक दूसरे के बारे में पता है, और ये पब्लिक की और किसी को नहीं पता, ठीक है, मतलब ये भी बात है। प्राइवेट की तो बिल्कुल नहीं पता, और पब्लिक की प्राइवेट की तो मतलब उनके अलावा किसी को नहीं। जैसे 2 बंदे हैं, ठीक है, मतलब मान लो 10 बंदों का रूम है, ठीक है, उसमें 2 बंदे हैं और बाकी बचे हुए 8 बंदे हैं। अब ये 2 बंदे आपस में कर रहे हैं तो इनका अपने में एक पब्लिक की होगी, और दोनों बंदों की एक एक प्राइवेट की होगी, ठीक है, और दोनों की एक एक पब्लिक की होगी, और मतलब और इन दोनों की पब्लिक की इन बस दोनों को पता होगी, बाकी जो 8 बंदे हैं उनको ना पब्लिक पता है ना प्राइवेट पता है। और मतलब सामने वाले की, जैसे इन दोनों बंदों को एक दूसरे की पब्लिक पता होगी पर प्राइवेट नहीं पता होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इंक्रिप्शन हो गया, अब इसके बाद डिक्रिप्शन टेक्स्ट में तो तुम्हारा साइफर है उसकी पावर में डी कर देंगे, फिर मॉड इन कर देंगे। अब रिसीवर के पास होता है डिक्रिप्शन, रिसीवर ने ही की जनरेट करी थी, तो प्राइवेट की तो रिसीवर के पास है ही, और पब्लिक की भी रिसीवर के पास थी, और वो उसने सेंडर को भेज भी दी थी। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो ये होता है हमारा RSA क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, काफ़ी सही है, सिंपल है। इसके बाद नैपसैक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम की बात करें, ये मेरे को सबसे सही लगता है और सबसे अच्छे से आता है मेरे को। नैपसैक इज अगेन अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, यानी कि ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, यहाँ पे रिलेटेड पेयर ऑफ कीज यूज होता है, ठीक है, पेयर ऑफ रिलेटेड कीज यूज होता है जो कि पब्लिक की एंड प्राइवेट की है। और इसमें एक और चीज़ होती है क्या कि जो विच आर जनरेटेड पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर जनरेटेड बाय अ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम व्हिच इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कई बार ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, डिस्क्रीट लॉग की प्रॉब्लम होती है, कई बार दैट की फैक्टराइजेशन ऑफ लार्ज इंटीजर इज वेरी हार्ड टू फाइंड, कई बार इस प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है, ठीक है। और ये नैपसैक वाली है, ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक होता है इजी नैपसैक जो हमारा प्राइवेट की बनता है, ठीक है, सॉरी इजी नैपसैक हमारा पब्लिक की बनता है, नो यू आर रॉन्ग। तो इजी है वो प्राइवेट, ठीक है, इजी नैपसैक जो हमारा प्राइवेट की बनता है, और एक होता है हार्ड नैपसैक जो हमारा पब्लिक की बनता है, ऑब्वियसली पब्लिक की है तो वो थोड़ा हार्ड नैपसैक, ठीक है। तो इसमें 2 नैपसैक होते हैं। अब नैपसैक इजी नैपसैक क्या होता है, विच इज जस्ट अ सुपर इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ना सुपर इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है कि जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल प्रीवियस एलिमेंट। तो दिस इज माय इजी नैपसैक एंड दैट्स माय हार्ड नैपसैक। अब इसमें मेरा जो पब्लिक की प्राइवेट की तो मैंने बता दी, इजी नैपसैक आपका डायरेक्टली प्राइवेट की बन जाता है, ठीक है। एक सुपर इंक्रीजिंग सीक्वेंस लोगे, सो यू टेक एनी सुपर इंक्रीजिंग सीक्वेंस दैट इज योर जो की जनरेशन में ये हमारा प्राइवेट की बन जाता है फॉर रिसीवर, राइट। एंड इसके बाद बात आती है कि जो इसका पब्लिक की है फॉर रिसीवर विच इज ऑल्सो अवेलेबल टू सेंडर, वो कैसे बनाता है रिसीवर, वो ऐसे बनाता है कि जो इसने प्राइवेट की बनाई इसमें दे टेक 2 मोर इंटीजर्स n एंड m, ठीक है, और इन दोनों का आपस में GCD 1 होता है, राइट। और m शुड बी ग्रेटर देन यू नो सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द प्राइवेट की यानी इजी नैपसैक में, बिकॉज n से हम मल्टीप्लाई करते हैं और m से हम मॉड्यूलर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा इजी नैपसैक था उसमें हर नंबर को हमने n से मल्टीप्लाई करा और मॉड्यूलर m ले लिया, तो दैट विल अगेन बी और यू नो द पब्लिक की, ठीक है। सो दिस इज द हार्ड नैपसैक, दिस इज द पब्लिक की। नाउ इंक्रिप्शन कैसे होता है कि मैसेज आया, मान लो हमारे मैसेज जो भी आया उसको हमने बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर बाइनरी में हमने कितनों का ग्रुप्स उठाना है हमें, जैसे जो हमारा नैपसैक था उसकी लेंथ क्या है उतने का हमें ग्रुप्स उठाना है, जैसे 6 लेंथ थी तो हमने 6 के ग्रुप ऑफ 6 में डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप ऑफ 6 को हमने उठाया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने इजी नैपसैक के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इजी नहीं सॉरी जो हार्ड नैपसैक पब्लिक की बनी है, ऑब्वियसली इंक्रिप्शन में हमेशा पब्लिक की यूज़ होती है, पब्लिक की यूज़ होती है, ठीक है। डिक्रिप्शन में हमेशा प्राइवेट की यूज़ होती है क्योंकि वो रिसीवर पे होता है और वो प्राइवेट की रिसीवर की ही है और वो उसके साथ शेयर नहीं है, ठीक है, पब्लिक की शेयर है। अब देखो जो होता है कि इंक्रिप्शन हुआ तो जो पब्लिक की थी, ठीक है, हार्ड नैपसैक, उसमें मल्टीप्लाई करा हमने मैसेज के जो हमने बिट्स मल्टीप्लाई फॉर्म में करा, जहाँ जहाँ पे 1 था हमने उस बिट को सेट कर दिया और वो नंबर ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर, लाइक इन आर पब्लिक की में जो था वो नंबर हमने ऐड कर दिया था। ऐसे बना था 121 और 197 205, ये
मतलब हाँ, वो मैसेज हमारा फिर बाइनरी के थ्रू, फिर सुपर इंक्रीजिंग के थ्रू अब ये नंबर्स की फॉर्म में बन गया है। अब इन तीनों नंबर को हम भेज देंगे अपने रिसीवर के पास, और डिक्रिप्शन जब वो करेगा, रिसीवर के पास प्राइवेट की है, यानी कि उसके पास ईजी है, ठीक है। ऑब्वियसली हार्ड भी है उसके पास, ईजी भी है उसके पास, ठीक है। और ही ऑल्सो नोज द वैल्यू ऑफ एन और एम, तो वो सबसे पहले एन इनवर्स निकालता है, ठीक है। तो एन इनवर्स को इन 27 आया, ये जो भी आया, इन सबको एन इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद जो नंबर्स बने 11, 17 और 35। अब ये देखिएगा, ये नंबर कैसे मैं बना सकता हूँ, बाय द हेल्प ऑफ इजी नैपसैक, यानी कि प्राइवेट की जो इसके पास है, ठीक है, ये बनाएगा उसकी हेल्प से। तो जैसे 11 है, पब्लिक मेरी प्राइवेट की थी 1 2 4 7 ऐसी कुछ थी, ठीक है। 1 2 4 7 नहीं थे, 1 2 4 के बाद सीधा 10 था, ठीक है। तो अब 11 में कैसे बना सकता हूँ, 10 + 1 = 11, ठीक है। तो 1 के नीचे 1 कर दिया और 10 के नीचे 1 कर दिया। अब 11 ऐसे नहीं बनाने कि मैंने बाइनरी में 11 बना दिया, नहीं। जो मेरे को एक सुपर इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिया हुआ था, जो मेरा इजी नैपसैक था, जो मेरी प्राइवेट की थी, उसके फॉर्म में मेरे को बनाने हैं नंबर। फॉर्म कैसे होगी कि जहाँ पे वो 10 है वहाँ पे 1 कर दो, 1 पे 1 कर दो, तो 10 + 1 11 हो गया, ठीक है। 17 के लिए मैंने 10 की बिट को सेट कर दिया, 4 को सेट कर दिया, 2 1 को सेट कर दिया, ठीक है। तो 17 बन गया। तो ये 4 1 और 00 आ गया था। 35 के केस में जो भी था वो हो गया। तो ये था फुल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नैपसैक। इजी नैपसैक हमारी प्राइवेट की है, हार्ड नैपसैक हमारी पब्लिक की है। और इसके बाद टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा एल। लास्ट तो नहीं है, बट ये सॉरी, राबिन बीच में नहीं है। राबिन इज ऑल्सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, मार्किंग, यानी कि इसमें पेयर ऑफ रिलेटेड पेयर ऑफ रिलेटेड कीज यूज होता है। एक होता है पब्लिक की, प्राइवेट की, विच आर जनरेटेड बाय क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम विच इज बेस्ड ऑन mathematical problem। और ये जो राबिन वाली है, it's obviously based on the that factorization of a big number is difficult, right? Difficulty of factorization of large numbers की देखो, okay। की जनरेशन होती है, की जनरेशन में हम दो नंबर्स लेते हैं P and Q, और दो लार्ज प्राइम नंबर लेते हैं बस, और n निकाल लेते हैं। ये P into Q वो हमारी पब्लिक की बन जाती है, ठीक है। और प्राइवेट की क्या बनेगी हमारी, P, जो P और Q, P, Q, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब दो लार्ज नंबर लेने, दो लार्ज प्राइम इंटीजर्स लेने, ठीक है। दो लार्ज प्राइम लिए हमने, P और Q। जो हमारी पब्लिक की होगी वो होगी P into Q, जो प्राइवेट की होगी वो होगी P, Q, ठीक है। अब P, Q की इंफॉर्मेशन है रिसीवर के पास, और P into Q की इंफॉर्मेशन है तुम्हारे सेंडर के पास। अब देखो बात ये है कि जैसे सेंडर को ये पता है n, ठीक है, पब्लिक की पता है, ठीक है, P into Q पता है, तो जैसे P क्यों नहीं पता, बात ये है, ठीक है। और वो उसको बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो प्राइवेट की है, वो नहीं बता सकता उसे, है ना। तो मतलब एक नंबर आपके पास मान लो जैसे तुम्हें गिवन है 18 नंबर, ठीक है। तो 18 कैसे बन सकता है ये तुम्हें पता है ना, मतलब कोई बनाएगा 9 into 2 करेगा, कोई 3 into 6 करेगा, कोई कुछ और कर सकता है, 4.5 into 4 करेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, चलो। पर हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक की प्राइवेट की। अब बात होती है इंक्रिप्शन कैसे करना है। इंक्रिप्शन पब्लिक की मदद से होता है। पब्लिक की हमारी क्या है, एन है, P into Q। तो जो भी मैसेज आया उसको तुमने जस्ट पहले तो कन्वर्ट कर दो बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है। मैसेज को एस्काई करो, फिर एस्काई को बाइनरी करो। मान लो हाई है, तो हाई को एस्काई में कैसे करोगे, H की वैल्यू 8 होती है, I की वैल्यू 9 होती है, ठीक है। तो 89 बन गया, उसको रिप्रेजेंट कर दो बाइनरी में, तो वो बन जाएगा। अब बाइनरी का जो सीक्वेंस है उसको रिपीट कर दो, ठीक है। M से M डैश बना दो, ठीक है, या 2m बना दो, उसको रिपीट कर दिया। देन तुमने क्या करा, वो तुम्हारा बाइनरी में नंबर बन गया। उसको रिपीट करने के बाद भी बाइनरी नंबर है, अब उसको डेसिमल बना लो, ठीक है। ये डबल ऑफ बाइनरी काइंड ऑफ स्टफ है। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको पावर 2 कर दो, ठीक है। m की m स्क्वायर मॉड n पास कर दो। n तो तुम्हारे पास है P into Q, ठीक है। पब्लिक की तो तुमने ये पास कर दिया एज अ साइफर टेक्स्ट तुम्हारा, कि पहले m स्क्वायर निकाला तुमने, m स्क्वायर से पहले m कैसे आया कि मैसेज था, एस्काई करा, उसको ट्वाइस कर दिया, एंड देन तुमने उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करा, वो m बन गया, फिर उसका स्क्वायर तुमने मॉड n लेके पास कर दिया। तो दिस इज योर एनक्रिप्शन, वेरी इजी। डिक्रिप्शन में बात आती है, फाइंड डिक्रिप्शन देखना पड़ेगा यार इसका, एंड इफ यू वांट टू रियली सी, और सबसे अच्छे फॉर्मेट में वो है सर ने कराया हुआ। बट GSD पे कोई पूछेगा तो ये है, पहले ए बी निकालो तो तुम्हें वो इसका वो मिल जाएगा, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन लगा के, फिर आर और एस निकालो, फिर APR, फिर प्लस BQS, APR माइनस BQS। ए और बी तो हमें पता है, ठीक है। RS में हमें मिल जाएगा, P और Q हमें पता ही है, ठीक है। बिकॉज तुम वहाँ पे खड़े हो, रिसीवर की साइड पे खड़े हो, तो हमें पता ही है ऑब्वियसली कि रिसीवर को P and Q दोनों पता है, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट की है, राइट। ओके।
क्रिप्टोग्राफी टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टू हूँ मैं। सॉरी गाइस, ना सबसे पहले हैं हम तुम दोनों। डूबी हुई हम जो रैबिन में तो m स्क्वायर mod n है, और डिक्रिप्शन में a1 इज इक्वल टू सी पी की पावर प्लस 1/2। ठीक है, साइफरटेक्स्ट तुम्हारे पास है, p तुम्हारे पास है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 तुमने ले लिया। नाउ अप्लाइंग CRT टू m1 इज इक्वल टू, तुम निकालो CRT लगाओ a b p क्यूब पर। ठीक है, कैसे, जैसे a1 और b1 पे तुमने लगाया CRT। ठीक है, फिर तुमने a1 और b2 पे लगाया। ओनली एक ही मीनिंगफुल सॉल्यूशन होगा, है ना। a2 b1 पे CRT लगाना है। फिर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं a1 b1 p क्यूब पे, है ना। एक बार ये मैं देख लूँगा रॉबिन का डिक्रिप्शन, पर ये जो है सही है, ऐसे मान के चलते सर ने लिखवाया तो सही होगा। डिक्रिप्शन पे हमने क्या करेंगे, सबसे पहले तो a1 a2 b1 b2 निकालेंगे। a1 क्या होता है, साइफरटेक्स्ट की पावर में p+1/2। ठीक है, p+1/4 mod p। टूटा हुआ दिमाग चलाता, दिमाग चलता क्यों नहीं। सॉरी गाइस, सो डिक्रिप्शन में आई वाज सेइंग कि a1 a2 b1 b2 जो है, a1 इज c की पावर p1+4। ठीक है, और b1 जो है c की पावर p1 +1/4, वो भी माइनस का। ठीक है, a2 है जस्ट उसका माइनस। ठीक है, b1 है c की की पावर q+1/4 mod q होगा, और फिर b2 होगा उसकी का माइनस, राइट। फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू सेकंड हाफ, है ना। सेम थिंग a p apple p q ऐसे। ना तुमने a1 a2 b1 b2 निकाल लिया, देन तुम क्या करो, CRT लगा दो। अप्लाइंग CRT ऑन a1 b1, देन a2 b1, एंड देन a1 b1, फिर a1 b2, और एक होता है a2 b1 a2 b2। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 CRT लग जाएंगे, m1 m2 m3 m4, एंड देन इसके बाद पब्लिक की, प्राइवेट की, देन इसके बाद ये हमारा हो गया। तो यही है डिक्रिप्शन प्रोसेस का पूरा। सो नॉन, अब इसमें से एक ही मीनिंगफुल सॉल्यूशन होगा। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ये, पी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है ओनली वन की।
बना लेना ये सामने वाली लाइट जला देगा इतनी कम लाइट में पड़ रहा है so this was our so this was about Rabin. Let's talk about L-Gamel. So L-Gamel is again a public key cryptography. So that's mean it's a asymmetric key cryptography. That means it have a related pair of keys, and that means you have a public key private key which can be generated by a cryptography algorithm that is a cryptographic algorithm based on the mathematical problem, right? Now this is again based on the type that key if you know. No. I think factorization for a large or difficulty of factorization is also based on difficulty of factorization. No, it's based on the discrete log problem. ठीक है, solvable in polynomial time.